Good morning, students. Today we have to discuss about the next topic of chapter. Second, the topic is deficiency diseases. And in previous video, you have read about balanced diet. And you know the right amount of carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals along with roughage means dietary fibers and water is called a balanced diet. And you know that in balanced diet, the all components of food are essential for proper growth and development of the body. So, in balanced diet, first is carbohydrate, second is protein, third is fats, vitamins, minerals and dietary fibers. You know that carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals are the major components of food, and carbohydrate and fats are also called energy giving food, and fat is also energy giving food. Protein is also called body building food, and vitamins also give us energy and responsible for growth and development of body, and minerals is also. So if you not take proper amount of any nutrient of balanced diet such as carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals and dietary fibers means balaंस्ड डाइट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके फूड के, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो या फिर डाइटरी फाइबर्स मीन्स रफेज एंड वाटर, अगर एक भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपका मिस हो गया तो डेफिनेटली यू विल सफ़र फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. So we can say the disease which are caused by the deficiency of nutrients means carbohydrate deficiency या फिर प्रोटीन की डिफिशियंसी से या फिर फैट्स की डिफिशियंसी से या फिर विटामिन्स की डिफिशियंसी से या फिर मिनरल्स की डिफिशियंसी से, तो दैट इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज. एंड यू नो दैट बैलेंस्ड डाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन. सपोज दैट कोई ऐसे पर्सन है जो हार्ड वर्क करते हैं तो उनके लिए बैलेंस डाइट कुछ और होगी, लेकिन न्यूट्रिएंट के जो कंपोनेंट्स हैं यही होंगे, लेकिन इनके अमाउंट वेरी करेंगे या फिर अलग अलग होंगे. और सेम एज का कोई भी एडल्ट पर्सन है जो कि नॉन वर्किंग है या फिर हार्ड वर्क नहीं करता है तो उसके लिए बैलेंस डाइट में कंपोनेंट्स ऑफ फूड यही होंगे, लेकिन अमाउंट चेंज होगा. सपोज दैट इफ अ पर्सन इज डूइंग हार्ड वर्क, सो दैट पर्सन नीड carbohydrate and fats because you know carbohydrate and fats are energy giving food items.
and the person who is not doing hard work, then when he get excess amount of energy, that will be not beneficial for that person, and that person will suffer from obesity. You know that when the fat content in our body is increases, and when we not utilize the energy which is obtained from the fat, then that condition is called obesity. So it is all about the deficiency diseases. Now I will discuss about the deficiency diseases caused by the deficiency of vitamins and minerals, and in your book table 2.3, टेबल 2.3 में आपको डिफिशियंसी डिजीज के लिए ये टेबल है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और इसके बाद आप जो भी कंफ्यूजन होगा बाद में पूछ सकते हैं। जैसे फर्स्ट विटामिन ए, यू नो दैट डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए काज नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर लॉस ऑफ vision. Means in night blindness the person cannot see anything in dark, and the vision of that person loss, or the person who is suffering from night blindness will not see anything clearly, and the major that in night blindness there is deficiency of vitamin A. Second, that is vitamin B1. Vitamin B1, due to the deficiency of vitamin B1, very डिजीज होगी, एंड सिम्टम्स होंगे इस डिजीज के कि वीक मसल्स विल बी वीक एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मतलब आपको एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी ही मिलेगी वर्क करने के लिए। इट मीन्स यू विल डेफिनेटली फील टायर्ड आफ्टर डूइंग सम वर्क। थर्ड, विटामिन सी, विटामिन सी डिजीज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी विल कॉजेज स्कर्वी, SCURVY। द सिम्टम्स, अगर किसी पर्सन को स्कर्वी डिजीज हो गए तो पहला सिम्टम्स होगा कि ब्लीडिंग गम्स, मतलब जो आपके टीथ और गम्स हैं तो उनकी जो पकड़ होगी वो ढीली पड़ जाएगी, मतलब अब वहाँ से ब्लड रिलीज होने लगेंगे। थर्ड, जब आपको किसी तरह की इंजरी हो जाएगी या बाय मिस्टेक आपको जैसे बॉयल फोड़े हो जाते हैं तो कोई भी घाव या फिर वुंड जो होगा बॉडी में वो ठीक होने में ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो इट इज आर अबाउट द स्कर्वी, एंड यू नो दैट विटामिन सी is a single vitamin which is destroy on heating. You know the source of vitamin C. In vitamin C, you know that citrus fruit, lemon, आंवला, ऑरेंज, तो ये जितने फ्रूट्स हैं कभी भी इनको हीट करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जब भी आप इसको खाइए तो इतना केयर करना है कि इसको हिट करके नहीं खाना है या फिर इसको बॉयल करके नहीं खाना। अब आते हैं विटामिन डी पे। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी विल कॉज रिकेट्स। रिकेट्स जो होगा वो चाइल्ड के केस में होता है, और उसमें क्या होगा कि बोन्स क्या हो जाएंगी,
सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट होने लगती हैं। मतलब जब किसी चाइल्ड के केस में रिकेट्स हुआ है तो बोन्स क्या हो जाएंगी, मतलब कर्व भी होने लगती है और सॉफ्ट भी हो जाएंगी, मतलब अब बोन्स हार्ड नहीं होंगी। सो इट इज ड्यू टू दी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। इसके बाद आते हैं कि मिनरल से कौन कौन से डिजीज होंगे। व्हेन देयर इज डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स इन योर बॉडी, सपोज दैट द मिनरल्स इज कैल्शियम, कैल्शियम की डिफिशियंसी से बोन्स और टीथ में डेकी होने लगेगा। मतलब जब आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी तो आपके बोन्स में और टीथ में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होंगे। जैसे आप किसी बेबी को देखिए तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ मिल्क को ड्रिंक करता है, इसके चलते उसमें टीथ जो होते हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं इन बेबी। सो कैल्शियम प्ले अ मेजर रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड टीथ। अब जब इसकी डिफिशियंसी होगी तो बोन्स आपके क्या होंगे, वीक होंगे और साथ साथ टीथ में डेकी होने लगेगा, मतलब कैविटी होने लगेगी या सड़ना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है आपका आयोडीन। आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो आपको ग्वाइटर डिजीज होगी। ग्वाइटर डिजीज में क्या होता है कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड्स है, मतलब नेक रीजन में आपको स्वेलिंग आपको समझ में आएगी जब ऐसे पर्सन को देखेंगे जो कि ग्वाइटर से सफ़र कर रहा है। तो साथ साथ इसमें मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है अगर आप आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं रहें।